You just have to give 30 to 45 minutes to these videos in order to get the essence of the book. So let's get started with a brief introduction of the writer. Who was Brian Tracy? Brian Tracy was a Canadian-American motivational speaker and self-development author. He worked as a laborer in different industries. He didn't graduate from the school. He dropped out himself at the age of 21. One day, while sitting alone in his apartment, he realized all of his mistakes that he made before and write down all of the opportunities that he left before to use in this book that we are going to discuss later. So these are the contents of the book. First, we are going to discuss about the introduction. There are no limits and lessons on different aspects. In these lessons, we are going to study about the main topic, success is predictable. Then secondly, I'm going to tell you about the 12 major rules. On these rules, the book lie on it. We can implement all of these rules in our daily life to get the desired successful person. Thirdly, we are going to discuss about the Make Your Life Masterpiece, but how? By implementing all of these rules that we are going to discuss later. So let's start with the story of the old man. I'm going to tell you the story of the old man who lived on a hill, whose fame spread throughout the land because of his intelligence. His intelligence was that he can find all the solutions of the problems that people asked to him. There was always also a group of boys who lived near him. The leader of the group, named Aram, one day called out his group and grabbed a sparrow in his own hand and asked them, "We are going to ask the old man about this bird's fate. If he's gonna tell us that this bird is going to live, we will crush it. And if he said that this bird is going to die, then we will let it fly away. Thus, we can prove him wrong by this our plan." लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टोरी इन उर्दू। एक पहाड़ पे एक बूढ़ा आदमी रहा करता था जिसका जो कि इस चीज़ से मशहूर था कि उसके पास हर मसले का हल होता था। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे हर अपने मसले के लिए और वो उनके मसले हल कर देता था। उस एरिया में उस पहाड़ पे एक लड़कों का ग्रुप भी रहा करता था जो कि उसको हमेशा कोशिश करते थे कि ओल्ड मैन किसी भी तरह हमारे जाल में फंस जाए और हम उसको गलत साबित कर दें। एक दिन उस ग्रुप के लीडर ने क्या फैसला किया कि हम एक चिड़िया पकड़ेंगे और जाके उसकी किस्मत पूछेंगे उस बूढ़े आदमी से कि इसकी किस्मत में क्या है, जीना है या मरना है। अगर वो कहेगा कि इसने अभी जीना है तो हम उसको क्रश करके मार देंगे, और अगर उसने कहा कि इसने मरना है तो हम उसको उड़ा देंगे। इस तरह हमारे पास ये होगा कि हम उसको गलत साबित कर देंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन जब वो उसके पास गए, बूढ़े आदमी ने उनकी चेहरे से पहचान लिया कि किसी नई चाल में मेरे पास आए हैं। और जब उन्होंने उसके बारे में पूछा तो बूढ़े आदमी ने एक ही जवाब दिया, एडम, इट इज हिज फेट इज इट इन योर ओन हैंड। इसकी किस्मत तुम्हारे इस टाइम अपने हाथ में है। तुम अपनी मर्जी से जो करना चाहो वो कर सकते हो उसके साथ। जो तुम करना चाहोगे वो तुम कर सकोगे और वो इसकी किस्मत में होगा। Main fact is that we have our own destiny in our own hand. Our acts, our decisions make our own future. We are the master of our own decisions and our own destiny. बेसिकली दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं, एक होते हैं प्रोएक्टिव और एक होते हैं नॉन प्रोएक्टिव। 10% जो पीपल होते हैं वो होते हैं प्रोएक्टिव, और वो कौन होते हैं? जो कि खुद पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। वो लोग जो अपने हर छोटी मसले से, हर छोटी नाकामियों से, अपनी हर छोटी नाकामियों को किसी दूसरे पे डिपेंड कर देते हैं। मौसमों पे डिपेंड कर देते हैं कि गर्मी बहुत थी, इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं फेल हो गया, ये मसला हुआ तो मैं फेल हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोएक्टिव पीपल वो होते हैं जो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी फेलियर का। Secondly, hope is not a strategy for success. Your life is too precious and important to be left to chance. Hope, उम्मीद तब बांधनी चाहिए जब हम कोई एक्शन करें। जब कोई एक्शन नहीं होगा, then there is no hope. Most of people used to say that if there is no will, then there is no hope. अगर हम कोई काम करेंगे, कोई सक्सेस की तरफ हम बढ़ेंगे, कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि एक्शंस जो होते हैं वही हमें रिवॉर्ड करते हैं। जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से वो जो रिजल्ट होता है वो हमारे एक्शंस पे ही तय करता है। हमने जिस तरह के काम किए होते हैं वो उस तरह का हमें रिवॉर्ड मिलता है। वी आर नॉट
हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी पैसेंजर की तरह बस स्टेशन में बैठ जाएं और एक बस का इंतजार करें जो कि आए उठा के हमें हमारी डेस्टिनेशन पे ले जाए। ज़िंदगी हर दफ़ा एक बस नहीं बन के आती हमारे सामने। हमें खुद मूव करना पड़ता है, खुद एक्शन लेना पड़ता है ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी डेस्टिनी को शेप में लेके आएँ, जो कि हम चाहते हैं। वो शख्स बनने की कोशिश करें जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि मैंने इसकी तरह बनना है। स्टेप ऑन योर ऑन एक्सेलरेशन, हमें अपनी ज़िंदगी को खुद बढ़ाना है। किस तरह? एक्शन करके, कोई ना कोई डिसीजन लेके, अपनी डेस्टिनी को सोच के, कोई रोड मैप बना के, उस पर चल के हमने फिर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को एक्सेलरेट करना है ताकि आगे जाके हमें डिसीजन में भी आसानी हो। जो चीज़ आए उसको हम फेस करें, हर चीज़ को हम फेस करके अपनी डेस्टिनी तक पहुँचें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अपनी सक्सेस तक इजीली एक्सेलरेट कर सकें। So let's start with success is predictable that I told you before. So first point is Brian Tracy education. As I told before about the education of the Brian Tracy, he didn't graduate from the high school. He dropped out himself at the age of 21. He worked at the different industries and at the last he get the job at his trade commission sales. When he found his job in the trade commission sales, one day he went on the other commission sales company to what he saw there. He saw there was always there's also a salesman like me, like him, the writer. There was also a salesman like him who was selling the same product at the same price, but he sells multiple times than him. Let me explain it in Urdu. जब ब्रायन ट्रेसी ने स्टेट कमीशन सेल्स में जब उसने जॉब उसको मिली तो वो दूसरे सेल्स कमीशन कंपनी में गया, स्टेट कमीशन कंपनी में। वहाँ जाकर उसने क्या देखा कि वहाँ पे मेरे जैसा एक और सेल्समैन है जो कि मेरी ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मेरे जैसी प्रोडक्ट सेम प्राइस पे, लेकिन वो मुझसे 5 टाइम्स मल्टीपल कमा रहा है। उसने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, ये किस तरह हो रहा है। उसने उसे 2 से 3 दफ़ा सवाल पूछा। सेकंड सेल्समैन उसको क्या जवाब दिया कि मैं पहले कस्टमर की नीड को समझता हूँ, उससे सवाल पूछता, प्रोस्पेक्ट्स की नीड्स को, उनके वांट्स को देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं सिर्फ पैसे के लिए कमाता हूँ, मैं लोगों की वांट्स के लिए उनकी नीड को देखते हुए प्रोडक्ट सेल करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट ईजीली सेल हो रही है। थर्ड पॉइंट, लर्न फ्रॉम द experts. Here is Brian Tracy. First rule: if you do what other successful people do, nothing can stop you from eventually getting the same results they do. And if you don't do what they do, nothing can help you. अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल पीपल बने तो हमें उनका पाथ फॉलो करना पड़ेगा जो पहले सक्सेसफुल पीपल गुजर चुके हैं। जैसे कि आजकल के ज़माने में काफ़ी एक्टर्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल पीपल रह चुके हैं। बहुत से सक्सेसफुल पीपल हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, फॉरेन कंट्रीज़ में। हम किसी की बात को फॉलो कर सकते हैं अगर हमें उनको फॉलो करना है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई भी मेहनत नहीं की, उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा तो वो बन गए या उनकी लक है। हर काम में लक नहीं आती बीच में, हर किसी ने मेहनत की होती है लेकिन कोई शो नहीं करता। ये बात अल्लाह को या उनके दिल को ही पता होता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। यू कैन इम्प्रूव योर लाइवलीहुड ऑफ सक्सेस मीन्स हम अपने सक्सेस के इम्कानात को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सक्सेस इज प्रेडिक्टेबल का क्या मतलब है? हम सक्सेस